Hello everyone. In this video, I am going to tell you about neo-evolutionism. Classification of evolutionary school. Evolutionary school is divided into two. The early evolutionists are called as classical evolutionists, and the later evolutionists who modified the idea of classical evolutionists, the theory of cultural development, are called as neo-evolutionists. In early video, I have already told you about classical evolutionists and their contribution. In this video, I will tell you about neo-evolutionist. And the neo-evolutionary school is divided into two on the basis of their nationality, British and American. In British neo-evolutionary school, there is only one pioneer of neo-evolutionary school, that is V. Gordon Childe, and in American neo-evolutionary school, there are four anthropologists: Leslie A. White, Julian Stewart, Marshall D. Silence, and Almon Service. Basic postulates of neo-evolutionary school. First, culture develops in form of parabolic curve, not in unilinear sequence. Culture progresses from simple to complex in form of parabolic curve. According to this theory, a social institution is born in a specific form in early stage, then gradually develops in entirely different form in different direction. Then it again moves towards the original form but in a new developed form. So the difference in neo-evolutionary school was that they said that the culture develops in not in unilinear sequence. जैसा कि classical evolutionists ने कहा था कि culture always develops from simple to complex and in stage after stage in single line. तो single line evolution की बात की थी classical evolutionists ने, but here neo-evolutionists said that culture develops in the form of parabolic curve, not in unilinear sequence. Means culture progress होता है from simple to complex, but not in form of यूनिलीनियर सीक्वेंस. वो एक सिंगल लाइन इवोल्यूशन नहीं है, जबकि पैराबोलिक कर्व के रूप में वो इवॉल्व होता है. यहाँ पर वो यूनिवर्सल इवोल्यूशन, मल्टीलीनियर इवोल्यूशन, जनरल एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन की बात करते हैं इन न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल. तो they said that in the first stage culture develops in means culture originate होता है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से मूव करता है, एंड सेकेंड स्टेज में वो चेंज शो करता है. मीन्स यहाँ पर कुछ एक चेंज शो करता है इन सेकेंड स्टेज, मीन्स एक स्पेसिफिक फॉर्म को वो गेन करता है. एंड इन थर्ड स्टेज अगेन उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं that are like the first stage but in different form. For example, in early stage means during the Paleolithic period there was shortage of cloth. इस early people वो नहीं जानते थे कि cloth क्या होता है, उन्हें शरीर को अपने क्यों ढकना है या कैसे ढकना है, और तो उनके पास उसकी नेसेसिटी नहीं थी, इसलिए वो महसूस नहीं करते थे, और शॉर्टेज भी थी क्योंकि क्लॉथ का इन्वेंशन नहीं हुआ था. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ और उन्हें पता चला कि क्लॉथ से उन्हें अपने शरीर को ढकना है, तो उन्होंने क्लॉथ का इन्वेंशन किया एंड दे कवर्ड देयर बॉडी विद क्लॉथ. मींस बीच में किसी स्टेज में उन्होंने पत्तों से ढका एंड देन दे इन्वेंटेड क्लॉथ एंड दे कवर्ड देयर बॉडी विद क्लॉथ. एंड द थर्ड स्टेज जो आज की प्रेजेंट मॉडर्न इरा है, इसमें ड्यू टू फैशन द पीपल वेयर लेस क्लॉथ्स. मींस वो थोड़ा क्लॉथ्स पहनते हैं, तो इसको न्यूडिज्म कहते हैं. तो ये मीन्स यहाँ पर लैक ऑफ क्लॉथ नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, बट ड्यू टू फैशन ऐसा है, तो न्यूडिज्म कहा गया. तो इस तरह की जो पहले तो स्टेज में शॉर्टेज क्लॉथ की थी, फिर उन्होंने इन्वेंट किया और उन्होंने बॉडी को कवर करना शुरू किया क्लॉथ से, एंड देन अगेन इट रीचेस टू द स्टेज ऑफ न्यूडिज्म, एंड दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू दिस प्रीवियस स्टेज, दैट इज द फर्स्ट स्टेज जो कि शॉर्टेज ऑफ क्लॉथ थी. तो यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा मिलती जुलती है कल्चर की, लेकिन रीजंस डिफर करते हैं. रीजंस आर डिफरेंट बट द सिमिलरिटी इन ट्रेड्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के इन बिटवीन जो रीजंस हैं, मतलब जो सिमिलरिटी है ट्रेड्स में वो सेम है, बट रीजंस डिफर कर रहे हैं क्योंकि नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कल्चर डिफरेंट फॉर्म में डेवलप हो चुका है. तो इस तरह उन्होंने फिर दूसरा
एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉमन ओनरशिप थी फर्स्ट स्टेज में। इस अर्ली स्टेज में कम्युनिटी की पूरी प्रॉपर्टी मानी जाती थी, किसी भी प्रॉपर्टी को कॉमन ओनरशिप होती थी, सबका उस पर अधिकार होता था। देन द सेकेंड स्टेज दे मीन्स उन्होंने इंडिविजुअल ओनरशिप की बात की, जो स्टेज कॉमन ओनरशिप प्रॉपर्टी थी वो अपनी जो सेकेंड स्टेज में डेवलप होता है तो हर के पास अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, तो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। एंड देन अगेन इन थर्ड स्टेज कॉमन ओनरशिप की बात होती है। तो इस तरह पैराबोलिक कर्व में जो है कल्चर प्रोग्रेस करता है यूनिलीनियर सीक्वेंस, एक सिंगल लाइन ऑफ सीक्वेंस में नहीं करता है, फ्रॉम सवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन। एंड यही इनका मानना था न्यू का। तो दिस वाज द फर्स्ट basic postulate. Then the other are universal evolution. Evolution of culture of mankind as a whole rather than with the particular cultures. Means यहाँ पर वो culture of mankind as a whole evolution की बात करते हैं, specific cultures की बात नहीं करते, particular cultures की बात नहीं करते। इनके अनुसार culture as a whole means all around the world culture progresses from simple to complex in form of parabolic curve। एंड तो इस तरह क्योंकि यूनिवर्सल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसीलिए इसको पूरे मीन्स पूरे विश्व की बात करते हैं, कल्चर ऑफ मैनकाइंड एज अ होल की बात करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल इवोल्यूशन। एंड द थिंकर्स व्हिच बिलोंग टू यूनिवर्सल इवोल्यूशन थ्योरी आर लेस्ली व्हाइट एंड बी गॉर्डन चाइल्ड। The third one is the multilinear evolution. Multilinear evolution means all culture of world not pass through same developmental stages, rather their stages were different in different areas in sub-areas or sub-areas. And the thinker who belonged to this school is Julian Stewart। और जूलियन स्टीवर्ट ने ही क्लासिफाई किया था क्लासिकल मतलब यूनिलीनियर, यूनिवर्सल और मल्टीलीनियर इवोल्यूशन में। टाइपोलॉजी जो क्लासिफिकेशन की दी थी इवोल्यूशन की वो जूलियन स्टीवर्ट ने ही दी थी और उन्होंने ही अपने को मल्टीलीनियर इवोल्यूशन से बिलोंग किया और यूनिवर्सल इवोल्यूशन में उन्होंने प्लेस किया लेस्ली एंड वाइट एंड बी गॉर्डन चाइल्ड को। और क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट में ये जो यूनिलीनियर इवोल्यूशन है उसमें उन्होंने मॉर्गन, टाइलर, मैकलिनन, मैने और मैरेट को रखा। तो इस तरह ये तीन टाइपोलॉजी होती है। फिर अदर पोस्टुलेट्स आर जनरल इवोल्यूशन एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन। ये दिया था एल्मन सर्विस एंड मार्शल डी साइलेंस के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि इवोल्यूशन और ऑफ टू टाइप्स, जनरल एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन। जनरल इवोल्यूशन और यूनिवर्सल इवोल्यूशन की जो कहने की बात है वो एक ही है कि इट जनरेट्स प्रोग्रेस, हायर फॉर्म से राइज एंड एक्सीज लोअर फॉर्म एंड कल्चर एज ए होल प्रोग्रेस। यहाँ पे कल्चर एज ए होल प्रोग्रेस करता है, जैसा कि यूनिवर्सल इवोल्यूशन में भी कहते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कल्चर ऑफ मैनकाइंड एज ए होल रादर देन पर्टिकुलर कल्चर्स। तो कल्चर एज ए होल मींस जनरल इवोल्यूशन एंड यूनिवर्सल इवोल्यूशन एक ही है और इसीलिए मार्शल डी साइलेंस एंड एल्मन सर्विस ने वी गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ली वाइट को जनरल इवोल्यूशनिस्ट कहा। तो उन्होंने उनको जनरल इवोल्यूशनिस्ट की कैटेगरी में रखा, जबकि जो जूलियन स्टीवर्ट है उनको उन्होंने स्पेसिफिक इवोल्यूशन की कैटेगरी में रखा, बिकॉज जूलियन स्टीवर्ट said about the particular cultures। उन्होंने particular cultures की बात की थी और specific evolution भी particular cultures की बात करता है। It creates cultural diversity, new forms differentiate from old and local culture means different environmental condition की वजह से जो local area होते हैं वहाँ पर अलग-अलग culture डेवलप हो सकते हैं। तो कल्चर एज ए होल तो डेवलप होता है, ये सारे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, लैंग्वेज, दीज आर द यूनिवर्सल। बट लोकली उसमें वेरिएशन पाए जाते हैं, जैसे लैंग्वेज डिफर कर सकती है लोकल में, रिलीजन वेरी करता है लोकल कल्चर्स में, किनशिप, फैमिली, मैरिज, कस्टम, ये सारे रिचुअल सब वेरी करते हैं तो उनको स्पेसिफिक इवोल्यूशन कहते हैं। मीन्स डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में, डिफरेंट ज्योग्राफीज में कल्चर वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये जो है बेसिक जो पोस्टुलेट्स है न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल के। फर्स्ट वी गॉर्डनर चाइल्ड, he was the only pioneer of British new evolutionary school and he was a British cultural evolutionist, new evolutionist, and his books are first is Dawn of Western Civilization, second, New Lights on Most Ancient East. Third is What Happened in History. These are very famous books. Dawn of Western Civilization, What Happened in History, Social Evolution, Man Makes Himself,
and what is history. These are the contribution of V. Gordon Child in form of books. He was the only pioneer of British school of neo-evolutionism and was an archaeologist. वो by profession archaeologist थे और बाद में उन्होंने neo-evolutionism की theory दी. He was a historical materialist because on the basis of the collection of material remains from Middle Eastern Europe, he gave his evolutionary theory and he correlated the cultural development with the technological materials. तो उन्होंने अपनी थ्योरी में जो न्यू एवोल्यूशनरी की थ्योरी उन्होंने दी थी उसमें उन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट को टेक्नोलॉजिकल मटेरियल से रिलेट किया था. एंड ही वॉज अ मार्क्सिस्ट एंड डिवोट फॉलोअर ऑफ एल एच मॉर्गन जो अमेरिकन क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे उनके ये फॉलोवर थे. मार्क्स के भी फॉलोवर थे और मार्क्स जो है मॉर्गन्स के बहुत बड़े फॉलोवर थे. तो इसलिए ये मार्क्सिस्ट भी थे, मार्क्स को भी फॉलो करते थे, एल एच मॉर्गन को भी फॉलो करते थे. और उनकी जो थ्योरी थी कल्चरल इवोल्यूशन की उसको उसी को उन्होंने न्यू फॉर्म में मॉडिफाई किया था. तो मार्क्स बिलीव दैट प्रोडक्शन द टूल्स नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन वर द बेसिक फैक्टर डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. तो मार्क्स का मानना था कि जो टूल्स होते हैं मींस प्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं जो उसके लिए जरूरी होते हैं और प्रोडक्शन itself, these are the basic factor. मीन्स कोई भी हिस्ट्री में अगर हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखना हो तो इन दो चीजों का मेन रोल होता है प्रोडक्शन एंड टूल्स फॉर द प्रोडक्शन. तो इस तरह according to him, at each stage of cultural development, mankind developed their technological skill to exploit natural resources. In early stage, the less advanced technological skill had made them less aggressive towards environment, but as the knowledge went on increasing, they had become more and more aggressive. तो उनका मानना था कि जब अर्ली स्टेज थी मीन्स पैलियोलिथिक कल्चर के समय जब वो उन्होंने कल्चर को सबसे पहले शुरुआत की जब टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई कल्चर और कल्चर का शुरुआत हुई ओरिजिन हुई तो उस समय क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी सिंपल टेक्नोलॉजी हुआ करती थी सिंपल इकोनॉमी सिंपल टेक्नोलॉजी तो उन्होंने नेशनल रिसोर्सेज को वो कम एक्सप्लॉइट करते थे पर जैसे जैसे उनका माइंड डेवलप होता गया नॉलेज इंक्रीज होती गई उनकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एडवांस होती गई वो ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव होते गए अपने एनवायरमेंट के प्रति. तो यही मानना था उनका वी गॉर्डन चाइल्ड का कि एज द टेक्नोलॉजी एडवांस्ड दे बिकम मोर एंड मोर एग्रेसिव. तो जैसे जैसे वो उनका टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और नॉलेज इंक्रीज होती गई दे बिकम मोर एंड मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट एंड ही ओपन और इसी के साथ कल्चर डेवलपमेंट हुआ मीन्स अर्ली स्टेज में क्योंकि लेस एडवांस टेक्नोलॉजिकल थी लेस एग्रेसिव थे नॉलेज कम थी स्किल्स डेवलप नहीं थी इसलिए उनका कल्चर रूट फॉर्म में था या प्रिमिटिव फॉर्म में था और जैसे जैसे उनका नॉलेज इंक्रीज होता गया उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और एनवायरनमेंट के प्रति वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव होते गए मीन्स ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए तो कल्चर एडवांस होने लगा तो सैवेजरी से बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन की स्टेज आई ऐसा मानना था वी गॉर्डन चाइल्ड का एंड उन्होंने माना कि डाइवर्सिटी जो है उसको उन्होंने मीन्स बताया कि कल्चर रिवोल्यूशन में डाइवर्सिटी ट्रेडिशंस में वो डिफ्यूजन की वजह से होती है और कल्चर डाइवर्जेंस की बात की उन्होंने मीन्स कल्चरल पैरेलल्स की बात नहीं की जैसा कि क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का पैरेलल डेवलपमेंट की बात करते थे कल्चर पैरेलल्स की बात करते थे बट हियर ही said about the culture divergence and he opined that the reason behind the diversity in traditions is the different environmental conditions time and ups and downs in the human life. He found the role of diffusion in the culture divergence and found no parallels in his study. तो उन्होंने स्टडी में अपने पैरेलल्स को नहीं स्टडी किया मीन्स पाया नहीं अपने रिजल्ट्स में और उन्होंने पाया कि कल्चर डाइवर्जेंस होता है और जो कि जिसमें कि रोल होता है डिफ्यूजन का मीन्स इंटरेक्शन होता है दो कम्युनिटीज का या माइग्रेशन से या किसी वजह से जो नए ट्रेड्स किसी भी कल्चर में आ जाते हैं उससे कल्चर डाइवर्स हो जाता है और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी कल्चर वेरी करता है तो ये था कि द रीजन बिहाइंड डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू V. Gordon Child in his book Social Evolution. He described the evolution of culture in terms of three major events. So according to Child, there are three major events जिसमें कि evolution होता है. First, the invention of food production means पहली बार जब food produce होता है
तो that was the first stage. Then comes the urbanization stage, and third is the industrialization stage. Means first the food production stage, and food production होता है तो population increase करती है, और population increase करती है तो विलेज और सिटीज का मीन्स निर्माण होता है. एंड देन कम्स मीन्स स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन आता है. एंड देन द लेटर स्टेज इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन. He was very much influenced by the Tyler and Morgan's evolutionary scheme of savagery, barbarism, and civilization, and he didn't place the specific cultural groups in three stages like the Morgan. Morgan ने जैसा कि lower middle and upper savagery and lower middle and upper barbarism and then civilization को उन्होंने technological development से relate किया था, तो वो specific cultures की बात करते थे मॉर्गन. हाँ, लोकल मीन्स एनवायरमेंट एज ए होल जो कल्चर डेवलपमेंट है वो टाइलर कहते थे, इसीलिए इन्होंने टाइलर को यहाँ पर फॉलो करते हुए यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ कल्चर दिया. और in his book social evolution he showed that how the archaeological periods and culture development are related to each other. The archaeological periods, according to he divided into four: Paleolithic, Neolithic, Copper Age, and Early Bronze Age. And he relates means उन्होंने related किया कल्चर डेवलपमेंट को आर्कोलॉजिकल पीरियड से. और यहाँ पर जो कल्चर की स्टेज थी सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन के अलावा उन्होंने बार्बरिज्म में एक हायर बार्बरिज्म की स्टेज ऐड कर दी. तो जैसा कि मॉर्गन ने तो लोअर मिडिल एंड अपर सेवेजरी, लोअर मिडिल एंड अपर बार्बरिज्म देन सिविलाइजेशन दिया था, यहाँ पे इन्होंने सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन वैसे ही रहने दिया, बस एक हायर बार्बरिज्म की स्टेज यहाँ पर ऐड कर दी. और हायर बार्बरिज्म को उन्होंने रिलेट किया कॉपर एज से. मीन्स नियोलिथिक जो पीरियड है जिसमें कि एग्रीकल्चर होता है, एनिमल डोमेस्टिकेशन की बिगनिंग होती है. मीन्स जो एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था, और तो उस स्टेज को उन्होंने बार्बरिज्म कहा. उसके पहले की जो स्टेज है वो पैलेलिथिक पीरियड, जहाँ पर आर्ट का डेवलपमेंट होता है, टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है. एंड देन कॉपर एज को उन्होंने रिलेट किया हायर बार्बरिज्म से. मीन्स मेटल इन्वेंशन हो गया है यहाँ पर, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ हायर बार्बरिज्म. एंड देन अर्ली ब्रॉन्ज एज जहाँ पे सिटीज का निर्माण होता है और सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो इसको सिविलाइजेशन फेज कहा, जिसमें कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, सिटीज बनी, तो ये दैट इज द फेज ऑफ सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू पी गॉर्डन चाइल्ड. Next is Julian Stewart, and he was an American neo-evolutionist, and his book is Theory of Culture Change. Most famous book is Theory of Culture Change, and the others are the articles, diffusion and independent inventions, economic and social basis of primitive plants, ecological aspects of southwestern society, based in Pluto aboriginal socio-political groups, culture, casualty and law, and cultural evolution 1956. So these are the contribution of the Julian Stewart in form of books and articles. He was an American multilinear neo-evolutionist, and he gave the threefold classification of evolutionary approaches in his book Theory of Culture Change. He suggested that there are three types of evolutionary ideas: unilinear, universal, and multilinear. He placed classical evolutionists in unilinear, neo-evolutionists V. Gordon Childe and Leslie White in universal evolutionism, and he placed himself in multilinear evolutionism. So multilinear evolution, according to him, all cultures of God have not passed through the same developmental stages, rather the stages were different in different areas or sub areas. For example, यहाँ पे example दिया ice area, desert area, coastal area, forest and plain area. Means जो environmental condition के according यहाँ पर area अलग अलग है. जैसे कि डेजर्ट प्लेस में डेजर्ट एरिया बना दिया, कोस्टल मीन सी शोर में जो कोस्टल एरियाज होते हैं, फॉरेस्ट एंड प्लेन एरियाज, आइस एरिया. तो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो कल्चर डेवलप भी होता है अलग अलग की एनवायरमेंटल कंडीशन डिफर करती हैं. तो स्पेसिफिक कल्चर्स की बात की, ये सारे स्पेसिफिक कल्चर्स है. तो जब जो आइस एरिया में जो कल्चर डेवलपमेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि वही स्टेजेस डिजर्ट एरिया और कोस्टल एरिया में हो. जो कोस्टल एंड डिजर्ट एरिया में जैसा कल्चरल डेवलपमेंट होगा वो फॉरेस्ट प्लेन एरिया और आइस एरिया में नहीं होगा. तो इस तरह उन्होंने बताया कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में
कल्चर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू आगे बढ़ता है, और इसीलिए उन्होंने मल्टी लीनियर एवोल्यूशन की बात की. नॉट सिंगल लाइन ऑफ एवोल्यूशन और यूनिवर्सल एवोल्यूशन, इट इज मल्टी लीनियर एवोल्यूशन. मीन्स डिफरेंट लाइन्स में कल्चर इवॉल्व होता है इन डिफरेंट एरियाज. तो डेवलपमेंटल स्टेजेस डिफर करती हैं ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. ही स्टडीज कल्चर्स ऑफ मैक्सिको, मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट, and concluded that all evolved from savagery to barbarism, or savagery through barbarism to civilization, but in different time periods in different areas. Multilayer evolution was interested in particular cultures and only those limited parallels which have empirical validity. तो उन्हीं पैलेस की बात करते हैं जिनकी इंपेरिकल वैलिडिटी होती थी, नहीं तो वो कल्चर पार्टिकुलर कल्चर्स में विश्वास करते थे. एंड साइलिन एंड सर्विस कोल्डिंग स्पेसिफिक इवोल्यूशनिस्ट. तो साइलिन एंड सर्विस ने उनको स्पेसिफिक इवोल्यूशनिस्ट माना, स्टीवर्ट को, और जो वी गॉर्डन चाइल्ड लेस्ली वाइट को जनरल इवोल्यूशनिस्ट माना. Parallelism and causality. The other contribution of Stewart is means society with similar technology and similar environment would parallel each other. उनका मानना था कि अगर environmental condition similar है, technology similar है, तो parallelism होगा, parallel development होगा. और अगर जो है environment differ करता है तो multilinear evolution होगा, specific culture होगा. तो there is interrelationship between the environment and technology. The most important concept is famous concept given by the Julian Stewart is culture ecology, that is man habitat interaction. He assumed that all features of a given habitat, that is ecology, are not relevant to a given socio-cultural system, and all systemic elements of culture like religion, politics, technology, kinship are not equally affected by man habitat interaction. तो किसी भी हैबिटेट या इकोलॉजी के जो सारे फीचर्स होते हैं इकोलॉजी में, वो सभी किसी सोशियो कल्चरल सिस्टम को इफेक्ट नहीं करते. मीन्स सभी फीचर्स नहीं करते, उसमें से कुछ ही करते हैं. और जिस तरह रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चरल सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी इक्वली इफेक्टेड नहीं होते हैं मैन हैबिटेट इंटरेक्शन के. तो हो सकता है रिलीजन इफेक्टेड हो पर टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिक्स नहीं इफेक्टेड हो. तो इक्वली इफेक्टेड नहीं है इकोलॉजी के द्वारा सारे सोशियो कल्चरल institutions. इस तरह all features of ecology are not relevant to a given socio-cultural system, and all systemic elements of culture like religion, politics, technology are not equally affected by the man-habitat interaction. Means यहाँ पर वैरी कर सकता है, किसी religious institution को ज़्यादा हो सकता है वो उससे मतलब उसके ऊपर इफेक्ट पड़े, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर इकोनॉमी मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस का उतना इफेक्ट ना पड़े. तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कल्चर इकोलॉजी, मैन हैबिटेट इंटरेक्शन. क्योंकि जो एनवायरनमेंट में मनुष्य रहता है उसके इंटरेक्शन से ही वो कल्चर को डेवलप करता है. जैसे एनवायरनमेंट होगा वैसा ही उसका कल्चर इवॉल्व करता है. बट सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ उससे इफेक्ट नहीं हो सकते हैं, किन्हीं विशेष इंस्टीट्यूशंस में उनका इफेक्ट पड़ता है. तो इफेक्ट वैरी कर सकता है ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हैबिटेट और ecology. Culture code. Evolutionary important portion of socio-cultural system. Culture core is the evolutionary important portion of socio-cultural system का जो evolutionary point of view से जो important portion उसको culture core कहते हैं. और technology is the basic component of core. But technology must always be analyzed in terms of conditions of local habitat. तो local habitat के आधार पर ही technology को मीन देखना चाहिए कि लोकल हैबिटेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. और यही इस कल्चर कोड की बेसिक एलिमेंट होती है टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है हैबिटेट के आधार पर, क्योंकि लोकल हैबिटेट जैसा है ऑलवेज बी एनालाइज, टेक्नोलॉजी मस्ट बी ऑलवेज एनालाइज in terms of condition of local habitat. According to him, the three fundamental procedures of culture ecology are: first, interrelationship between technology and environment must be analyzed, क्योंकि environment जो होगा उसके according technology. अब desert environment में जो technology है वो ice environment में technology नहीं हो सकती. तो टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को एक दूसरे के आधार पर मीन्स एनवायरनमेंट के आधार पर टेक्नोलॉजी एनालाइज की जानी चाहिए. ये है फर्स्ट. Then second is behavior pattern involved in exploitation of particular area.
must also be analyzed. तो यहाँ पर behavior pattern को भी analyze करना चाहिए. किसी भी particular area को exploit करते हैं, जब उनकी natural resources को हम use करते हैं, तो उसमें जो involved behavior pattern है उसको भी analyze करना चाहिए. And behavior pattern affects the other aspects of culture, to which extent must be investigated. तो जो इन्वॉल्व है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया में बिहेवियर पैटर्न, वो दूसरे एलिमेंट्स को कल्चर के कैसे इफेक्ट कर रहा है और कितना इफेक्ट कर रहा है, टू विच एक्सटेंट इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड. तो ये था थ्योरी ऑफ कल्चर मीन्स इकोलॉजी, जिसमें कि उन्होंने फंडामेंटल प्रोसीजर्स की बात की. अकॉर्डिंग टू हिम, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द डिफ्यूज ट्रेट वर ऑलवेज कॉन्टिजेंट अबाउट द लोकल पोटेंशियलिटीज like interaction of environment, exploitative devices and socio-economic habit. तो ये हमेशा लोकल पोटेंशियलिटीज पर डिपेंड करता है कि कितना हम जो डिफ्यूज ट्रेड है मीन्स दूसरे कल्चर का जो अदर कल्चर्स का ट्रेड्स हमारे कल्चर में या किसी पर्टिकुलर कल्चर में वो कितना एक्सेप्ट और कितना रिजेक्ट होता है. दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, exploitative devices जो devices है and the socio-economic habit of that particular environment. Next is cultural taxonomy. Culture taxonomy is related to culture evolution in determining the cross-cultural regularities or similarities in different cultural types, selected features, which ultimately yield multilinear evolution. For example, hill culture, sea culture, desert culture. तो on the basis of different environmental conditions, there are different types of culture. और उनकी नेमिंग उसी तरह दे दी जाती है, उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल ट्रेड्स. जैसा कि यहाँ पर इकोलॉजी के आधार पर कर दिए हैं कि यहाँ पर जो हैबिटेट है इकोलॉजी उसके आधार पर, जैसे हिल कल्चर, सी कल्चर, डिजर्ट कल्चर, प्लेन कल्चर और फॉरेस्ट कल्चर, तो ये आइस कल्चर यहाँ पर इकोलॉजी के आधार पर है. इसी तरह अगर नेशनैलिटी के आधार पर देखते हैं तो अमेरिकन कल्चर, इंडियन कल्चर, चाइनीज कल्चर, जापानीज कल्चर, तो ये हो जाएगा. तो इस तरह कल्चर टेक्सोनॉमी होती है. और ये कल्चरल पैरेलल्स की बात करते हैं, मीन्स डिफरेंट जो है जगहों में अलग अलग कैसे कल्चर डेवलप करता है. तो अमेरिका में जो कल्चर वो अमेरिकन कल्चर, इंडिया में इंडियन कल्चर. तो दीज the culture parallels. Other types based on value system are the national character, themes, pattern, etc. So this is about the cultural taxonomy given by Julian Stewart. Next is Leslie A. White. He was a American neo-abolitionist, and the books given by him are was written by him are The Science of Culture and The Evolution of Culture. Articles in different journals are Personality and Culture, A Problem in Kinship Terminology, Energy and Evolution of Culture, Diffusion versus Evolution of Culture, Evolutionism in Cultural Anthropology. His evolutionary approach was called as cultural materialism, and socio-cultural system consists of three processes according to him. First is techno-economic, second is social, and the third is ideological. For him, culture is a mechanism for harnessing energy. उन्होंने एनर्जी थ्योरी दी थी कल्चरल डेवलपमेंट की, और उनके अनुसार कल्चर मैकेनिज्म है फॉर हार्नेसिंग एनर्जी फॉर यूज ऑफ मैन and regulating his behavior. Social systems are determined by technological systems and art and philosophy express experience. तो इस तरह उन्होंने बताया कि सोशल कल्चर सिस्टम तीन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, टेक्नो इकोनॉमिक, सोशल, आइडियोलॉजिकल. और जो टेक्नोलॉजी है वही सोशल सिस्टम को डिटरमिन करती है. तो सोशल सिस्टम्स आर डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजी एंड आर्ट एंड फिलोसफी एक्सप्रेस द एक्सपीरियंस. और कल्चर इज अ मैकेनिज्म फॉर हार्नेसिंग एनर्जी फॉर यूज ऑफ मैन. तो मैन के लिए एनर्जी हार्नेस का काम करती है कल्चर. कल्चर इज एन एक्स्ट्रा सोमैटिक टेम्पोरल कॉन्टिन्यूम. ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उन्होंने दी थी लेस्ली एंड वाइट ने. और उनके अकॉर्डिंग कल्चर इज एन एक्स्ट्रा सोमैटिक टेम्पोरल कॉन्टिन्यूम उन्होंने कहा ऑफ थिंग एंड इवेंट्स डिपेंडेंट ऑन सिंबोलिज्म. Culture, according to him, culture consists of tools, implements, clothing, utensils. तो इसीलिए उनकी थ्योरी को कल्चरल मटेरियलिज्म कहते हैं, क्योंकि वो मटेरियल कल्चर की बात करते हैं. कल्चर डेवलपमेंट में मटेरियल की बात करते हैं. और उनके अनुसार कल्चर कंसिस्ट हुआ है टूल्स,
implements clothing, customs, utensils, belief, ritual, etc. And this can be understood in following steps. Culture depends on man for its existence. All life can be understood as a process of capturing and utilizing free energy. Culture is a mean for capturing and utilizing energy. The culture system can be divided into three: technology, tools, weapons, and knowledge of their use. Second is the social structural, and the third is ideological or the philosophical. तो कल्चर डिपेंड ऑन मैन फॉर इट एक्सिस्टेंस मीन्स मनुष्य पर डिपेंड करता है कल्चर. तो यदि मनुष्य होगा तभी कल्चर होगा, तभी सोसाइटी होगी. तो कल्चर मनुष्य पर डिपेंड करता है. एंड ऑल लाइफ कैन बी अंडरस्टूड मीन्स जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या है कि मीन्स ऑफ कैप्चरिंग मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन, ऑल द लाइफ फॉर्म्स. ऑल द लाइफ फॉर्म्स क्या है, वो बस कैप्चर करना एनर्जी को और यूटिलाइज करना अपने एग्जिस्टेंस के लिए. यही सारे लाइफ फॉर्म्स करते हैं और कल्चर एक माध्यम है ये कैप्चर और यूटिलाइज करने का. तो ऐसा बताना था लेस्ली ए वाइट का. उन्होंने बताया कि ऑल लाइफ कैन बी अंडरस्टूड एज प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड यूटिलाइजिंग फ्री एनर्जी एंड कल्चर इज अ मीन फॉर कैप्चरिंग एंड यूटिलाइजिंग energy. And he said that culture system is consists of three, that is first the technological, then second is social structural, and the third is ideological or the philosophical. All the three are interrelated to each other, but technology dominates by operating through social structure and ideology. क्योंकि कल्चर डिपेंड करता है मैन पर और ह्यूमन बीइंग जो कल्चर को मीन्स ह्यूमन के द्वारा जो कल्चर का ओरिजिन होता है दैट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी डोमिनेट करती है बिकॉज बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वो कल्चर को बनाते हैं मीन्स कल्चर का ओरिजिन होता है बाय ह्यूमन बीइंग and that operates through social structure or ideology. So both are shaped by technologies. Means social structure and ideology both are shaped by technology. And technology controls the amount of energy captured and utilized by the cultural system. तो कंट्रोल करने का काम टेक्नोलॉजी करती है मीन्स कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कैप्चर्ड होता है बाय द कल्चरल सिस्टम. And as technology become more efficient, more energy is captured and utilized. Means early जो societies थी during the Paleolithic culture, technology was less efficient, was less advanced technology थी, means primitive technology थी, low and simple technology थी. That's why less energy was captured and utilized, and due to culture development was very primitive culture development था. Means culture was its lower stage. अर्ली स्टेज में बहुत लोअर स्टेज में था कल्चर. एंड देन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होती गई ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कैप्चर्ड की जाने लगी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड द कल्चर डेवलप. तो कल्चर ज़्यादा एडवांस होता गया, कल्चर ज़्यादा मीन्स हायर फॉर्म्स की तरफ वो डेवलप करता गया जिससे कि सैवेजरी से बार्बरिज्म की स्टेज आई. तो उनका मानना था जैसे कि टेक्नोलॉजी एज टेक्नोलॉजी बिकम मोर एफिशिएंट मोर एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूटिलाइज्ड and which leads to the development in culture as a whole. In his book Evolution of Culture, he gave law of cultural development. He states that culture advances as the amount of energy harnessed per capita per year increases or as the efficiency or economy of the given means of controlling energy is increased or both. तो कल्चर एडवांस करता है जैसे जैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी पर कैपिटा पर ईयर इंक्रीज करती है तो वैसे वैसे कल्चर एडवांस करता है. तो जितना एनर्जी हार्नेस होगी जितना अमाउंट में होगी उतना ही कल्चर भी उसके साथ साथ एडवांस करता जाएगा. एंड ये एनर्जी हार्नेसिंग जो है वो डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पर. तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा इफिशिएंट टेक्नोलॉजी होती जाएगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी कैप्चर्ड होगी और जितना ही ज़्यादा एनर्जी कैप्चर्ड होगी उतना ही कल्चर ज़्यादा डेवलप होगा, हायर फॉर्म्स की तरफ बढ़ेगा. तो इवॉल्व होगा कल्चर फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर्म. And this law can be expressed as a formula E into T is equal to C. C is the cultural development, T is the technology, and E is the energy. And this is the law of cultural development according to Leslie White. One more stage in cultural development was added by him, that is savagery, barbarism, civilization and energy revolution. इस energy का revolution होता है उनके according. और he gave the formula of social organization, that is N is nutrition,
प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। तो न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन होता है तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। जैसे कि फैमिली, ये एक सोशल ग्रुप है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसमें कि न्यूट्रिशन भी है, प्रोटेक्शन है और रिप्रोडक्शन है, और उसके बाद एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। अकॉर्डिंग टू हिम, he gave formula of property as T into L is equal to P, where T is the things, T are the things, and L is labor. तो things means by using more and more labor, and things जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और जब थिंग्स होते हैं तो भी प्रॉपर्टी बनती है। मीन्स प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स या लैंड या इस तरह की चीजें मिलाकर प्रॉपर्टी बनती है। तो थिंग्स इनटू लेबर इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। Concept of evolution and history. According to him, history is concerned with the particular events unique in time and place, whereas evolution is concerned with classes of things and events regardless of particular time and place. Means evolution किसी particular time and place से जुड़ा हुआ नहीं है, बस उसका मेन होता है कि थिंग्स एंड इवेंट्स से कंसर्न होता है इवोल्यूशन, और उनमें ही जो नई नई स्टेजेस आती रहती है उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। मीन्स कॉन्टिन्यूअस चेंज, कॉन्टिन्यूअस ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बट हिस्ट्री इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वो पर्टिकुलर इवेंट्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस में, तो पास्ट में उसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है। तो हिस्ट्री और इवोल्यूशन में उन्होंने डिफरेंस किया, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। और दस हिस्टोरिकल स्टडीज आर पर्टिकुलराइजिंग, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम एंड पीरियड प्लेस से जुड़ी हुई थी हिस्ट्री, दैट्स व्हाई हिस्टोरिकल स्टडीज आर पर्टिकुलराइजिंग व्हाइल इवोल्यूशनरी स्टडीज आर जनरलाइजिंग, बिकॉज दे जो ये है जनरल टाइम एंड स्पेस से जुड़े हुए हैं, दैट इज व्हाई ऑल टाइम एंड स्पेस, दैट इज इवोल्यूशनरी स्टडीज आर जनरलाइजिंग। So he was interested in general evolution of mankind. That's why Stewart called him universal evolutionist, and Silence and Service called him general evolutionist. Marshall D. Silence. Books by him are Evolution and Culture in 1960, and this book he wrote with Almond Service. Almond Service भी अमेरिकन न्यू एवोल्यूशनिस्ट थे, उनके साथ उन्होंने ये पहली बुक लिखी थी, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। द अदर बुक्स आर स्टोन एज इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड प्रैक्टिकल रीजन, आइलैंड ऑफ हिस्ट्री, एनाहुलू, हाउ नेटिव्स थिंक एंड कल्चर इन प्रैक्टिस, सेलेक्टेड एसेस। तो कलेक्शन ऑफ एसेस है कल्चर इन प्रैक्टिस। He was an American anthropologist, and he, along with the Almond Service, gave theory of social evolution, जो general and specific evolution की theory थी, वो इन्होंने Almond Service के साथ दी थी in his book Evolution and Culture in 1960. And according to him, evolution is of two types, general and specific. General, that is the tendency of culture and social system to increase in complexity, means from simple to complex, जो increase करने की tendency है, that is the general evolution, और culture as a whole होता है। Specific evolution means occurs in specific cultures. It depends on local environmental conditions, and culture develop in their unique and specific ways due to diffusion. Then Almond Service books are A Profile of Primitive Culture, Evolution and Culture, Primitive Social Organization, Profiles in Ethnology, Cultural Evolutionism, and Origin of the State and Civilization. He was also an American cultural evolutionist, and in his book Primitive Social Organization 1962, he gave 4 levels of political organization. ये एक बहुत बड़ा इनका contribution था कि उन्होंने social evolution में political organization का कैसे evolution होता है ये बताया, कि from band to tribe and tribe to chiefdom and then finally state. तो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, या ओरिजिन ऑफ स्टेट जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ राइज ऑफ स्टेट, ये दी थी Almond Service ने, and he studied culture evolution in Paraguay and gave the theory of rise of state. Origin of state and civilization बुक की है, इसी में उन्होंने theory of rise of state दिया था, और ये एक बड़ा contribution था कि उन्होंने 4 levels of political organization का जो evolutionary stage दी थी, band, tribe, chiefdom, state. Means early societies were in the form of band, political उनका group होता था, then they develop into a tribe, then that is chiefdom, and the next is the state. तो इस तरह थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी राइज ऑफ स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट की थ्योरी उन्होंने दी। एंड एलमंड सर्विस ने वी गॉर्डन साइलेंस के साथ, मींस वी मार्शल डी साइलेंस के साथ उन्होंने जनरल एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन का भी थ्योरी दिया था, एंड ही डिवाइडेड कल्चर इनटू जनरल एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन।